सीमा जी 12:30 हो चुके हैं, 12:32 हो चुके हैं. आई होप यू शुड स्टार्ट द इवेंट. I request Seema Agarwal to please start the event. Program Officer, MDST Girls College. National Service. Start the event. Ma'am, just within a minute we are starting. नहीं हो रहा तो रहने दो, जल्दी करो. Madam, SK Virk has left. Why? Good afternoon, Manju Kharbanda. माइक ऑन है. मैम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जरा विदिन अ मिनट हम स्टार्ट कर रहे हैं जी. अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग विद द फेसबुक. अनस्टेबल नेट को. हाँ जी मैम. नेट कौन सा है? नहीं हो रहा है. नहीं हो जाएगा, ये नेट की प्रॉब्लम है. फिर ये देख, ये वाला ऐसे ही बनेगा. नहीं मैम, थोड़ी सी लंबी बनेगी, थोड़ी सी लंबी कपड़ा दूसरा है, वैसे मैंने रफ नहीं बनाया. कैंसर ऑन. There is a call from the Paras Hospital. They are shortly going to join again. Dr. Rajeshwar Singh, Director Oncology, Paras Hospital, Panchkula. आज वर्ल्ड का कैंसर डे है और ये बात करेंगे सभी तरह के कैंसर्स के कि कौन कौन से कैंसर्स एक मनुष्य के अंदर हो सकते हैं और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं. और आप लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कि क्या उनकी रेमेडीज हैं या कोई हमारे रिलेशन में कोई उससे ग्रस्त है, कैंसर से इन्फेक्ट, उसको कैंसर किसी भी प्रकार का है, वो उनसे पूछ सकते हैं कि what are the various ways to do it. क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक में भी कहते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज्वार या अंकुरित गेहूं का प्रयोग करना चाहिए. तो इस तरह की हम कई बातें डॉक्टर राजेश्वर जी से पूछ सकते हैं. तो ये आप सभी को कहा है कि एक बहुत ही भयानक बीमारी जो कि हिंदुस्तान में फैली है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स, बेटा जिनके भी माइक ऑन है म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज. ज्योति, आपका ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव है. इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर चुके हैं एमडीएसटी कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर इनरव्हील के साथ और रोटरी के साथ. मैम शुड वी स्टार्ट? I hope Dr. Rajeshwar ji is about to join probably. Ma'am, he has joined, ma'am. Acha, he has joined? Yes, ma'am. Are you able to look at that?
स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं है ना? नहीं मैम पारस हॉस्पिटल के नाम Rosarian, तो किया है मैम। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए पारस हॉस्पिटल से इस Pankuri is there? Yes, ma'am. Who is there, please? Ma'am, we are here. Okay. Now we can start Pankuri. Yes, ma'am. Okay. I request Seema Agarwal to please start the event. Okay, We welcome thank the yes, please. Yeah, wonderful. Okay. Good So, afternoon, everyone. Okay, Seema. Ma'am, just confirm one thing, that are you able to see the screen? Yes ma'am, yes. So you are seeing the presentation? Yes, हाँ जी. ऐसा है, पहले हम पांकुरी जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डॉक्टर ब्रिगेडियर राजेश्वर जी की, हमारी इनरव्हील की प्रधान देंगी और फिर हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हमारी प्रोग्राम ऑफिसर स्टार्ट करने जा रही है इवेंट और फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्क्रीन शेयर करें. स्क्रीन शेयरिंग टेस्टिंग हो चुकी है, हम देख पा रहे हैं. सीमा अग्रवाल. हाँ जी मैम. रेखा और नीलम. सीमा प्लीज स्टार्ट. हाँ जी मैम, हाँ जी. Just wait, छोड़ दे. Good afternoon, everyone. I, Seema Agarwal, NSS Program Officer of MDST Girls College, welcomes you all. As we all know that today is World Cancer Day, and we are here to get awareness regarding the common cancers and the preventive measures for it. First of all, I welcome our principal ma'am, Dr. Mrs. Kiran Angra. Today's expert, Dr. Rajeshwar Singh ji, Director Medical Oncology, Paras Hospital, Panchkula. President Rotary Club Ambala Central and his entire team. Sukhvinder Kaur Virk, President Innerville Club Ambala City and the entire team of Innerville Club Ambala. Since 2000, every year 4th Feb is celebrated as World Cancer Day. It is organized by Union for International Cancer Council. This year, the theme of the day is I Can, We Can. Means the jointly we can take steps or jointly we can work for the prevention and to cure the cancer. So it is a reminder of the enduring power of cooperative and collective action. We can work together to cancer risk factors. Today, we have with us Dr. Rajeshwar Singh, Director, Medical Oncology, Paras Hospital, Panchkula, who is an expert in the field and will enlighten us about the topic in detail. Now, I request Mrs. S.K. Virk, President, Innerville Club, Ambala City, to formally introduce Dr. Rajeshwar Singh. Ma'am, please. Mrs. Sukhvinder Kaur Virk, please introduce Dr. Sir. मैडम, could you hear us? Mrs. Virk, आप हमें सुन पा रहे हैं? Mrs. Virk? I request Mrs. Sukhvinder Kaur Virk, President, Innerville Club, Ambala City, to formally introduce our today's expert, Dr. Rajeshwar Singh ji. Mrs. Virk, Mrs. Sukhvinder Virk. Hello. हाँ जी मैम. Yes. Yeah. Good afternoon, everyone. I am Sukhvinder Virk, President of Innerville Club, Ambala City. I'm going to read the biodata of Dr. Brigadier Rajeshwar Singh, Director of Medical Oncology, Paras Hospital, Panchkula. Dr. Rajeshwar is a disciplined and confident oncologist with a certification in hematology, oncology, and internal medical. Currently serves as Director Medical Oncology at Paras Hospital, Panchkula. He has 25 years of experience in general medicine and 20 years of experience in medical oncology. He has served and treated patients in the Indian Army for 10+ years and has been the head of the Department of Medicine
at the prestigious CH Pune. He has also served as the head of the Department of Oncology in another prestigious and premier hospitals for the President of India and Army R&R Delhi. Prior to joining Paras Hospital, he was Director Medical Oncology in IVY Hospital. Now, I will tell you some previous experience of Dr. Saab. Doctor Medical Oncology at IVY Hospital, Mohali and Panchkula. Brigadier Medicine Administration, UB area, Bareilly. HOD Oncology and consultant at Army Hospital, R&R Delhi. Training, teaching, DNB Medical. I think that is sufficient introduction. Thank you, madam. People wants to know about you, sir. No. I hope the connections of Jio and Airtel are not working properly. that's That's why. Yeah. Yes, That is the problem. I think we'll connect better by discussing. There's a net. There's an internet issue at her place. So, Yes, internet issue and net problem is there, ma'am. Just wait. Are you listening me? Yes, ma'am. we could hear you, ma'am. Please Yes, continue. hello. Yes. Continue. Yeah. Training, teaching, DNB Medical and Surgical Oncology, D Radio, HOD Medicine and Medical Oncology, Associate Professor Medicine at Command Hospital, Pune, HOD Oncology and Associate Professor at Command Hospital, Chandigarh, HOD Oncology and Assistant Professor at Command Hospital, Kolkata, DM Medical. He is DM Medical Oncology at Cancer Institute, Adhyar, Chennai. Yes, ma'am. thank you, madam. Thank you for such a nice presentation, introduction. Should I proceed? Yes. We are very sorry, sir, because her place has some, everywhere it is an internet connection, sir. Yeah. Today is the But problem. before we should ask you to come, I request you have won number of awards and honors at Army Commanders Commendation 2008 Kolkata and Army Commanders Commendation at 2012 Chandi Mandir. So we are very, very happy, and your specializations, I hope everybody should know, you are in hematological and solid malignancies, peripheral stems, cell transplantation, which is a very well thing which everybody should know about it. This complex medical oncology problem, preventive care expert and extensive cancer genes neurology. So, sir, these are new coming areas, new innovative areas. So everybody of us who are sitting here, many volunteers are here, some Rotarians are here, and some inner wheel sisters and the doctors are also here. So that's just, this introduction is for everyone. So we should know how much expertise you have in built to you. So, sir, we welcome, I request Seema Agarwal to please take forward. Welcome, sir. Sir, please, you can start with your presentation. No. My slides are visible. Yes, Yes, sir. Hello, I am audible. Yes, sir. अच्छा मैं हिंदी में बात करूँगा इंग्लिश में whatever you say I will do that. Sir, Sir, bilingual is, I think is okay. Bilingual language you can use, ma'am. More in Hindi. Okay. So thank you very much for your kind introduction. Now I will proceed with a topic which I like to make it very simple, जो सबकी समझ में आ जाए. So जी, सर जी. देखिए कैंसर इज अ बिग प्रॉब्लम इंडिया. हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है 1.2 बिलियन और उसमें हर साल नए 15 से 20 लाख न्यू पेशेंट होते हैं और उनमें अगर पुराने पेशेंट भी हम मिला दिए जाएं तो 25 से 30 लाख पेशेंट हमेशा रहते हैं और इसमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा है मेल्स की कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और सर्विस कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन कैंसर है. आपको लगता होगा कि ये तो ज्यादा संख्या नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, उसमें 25-30 लाख ज्यादा नहीं होते. बट इफ यू थिंक कि 50 साल से ज्यादा कितने लोग हैं, हमारे 50 साल से ज्यादा सिर्फ 10 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ में 30 लाख काफी ज्यादा संख्या है.
कहने का मतलब है काफी ज्यादा लोगों को ये कैंसर होता है जो 50 एज क्रॉस कर जाते हैं। सो हरियाणा भी बहुत पीछे नहीं है, हरियाणा भी काफी आगे है। हरियाणा की पूरी स्टेट नंबर 3-4 में आती है। पंजाब को तो हम कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिमिलरली J&K, हरियाणा और हिमाचल के काफी कॉमन हो गया है कैंसर। अभी हमारी कंट्री में कौन से कॉमन कैंसर है? अगर हम मेल्स में देखें तो ओरल कैंसर, मुख का कैंसर और गले का कैंसर और लंग कैंसर 2 सबसे कॉमन कैंसर है। वेराज इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले विलेजेस में बहुत कम हुआ करता था और सिटीज में ज्यादा होता था। अभी ये सिटीज में बहुत ज्यादा हो गया, नंबर 1 कैंसर हो गया। इट हैज बिकम you see what you call as डेमोग्राफिक प्रॉब्लम हो गई है। इतना कॉमन कैंसर हो गया, हर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेडी में हमें ये कैंसर मिलता है। अभी आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्रीज में देखो मॉर्टेलिटी रिड्यूस होती जा रही है, डेथ रेट रिड्यूस होते जा रहे हैं, बट के हमारे देश में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो बहुत लेट लोग हमारे पास आते हैं, बड़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, उस स्टेज में ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो पहला एम तो हमारा ये होना, अवेयरनेस। आज मैं आपकी वर्ल्ड कैंसर डे में ये चाहूंगा कि आपको ये अवेयर करवाना है कि कैंसर को जल्दी पकड़ में करना है। सो अच्छा, तो हर आपको डॉक्टर से अपने आप में कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जब आपकी एज 40 हो जाए, क्रॉस हो जाए 40 के बाद, तो कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। वो ये है, पहला क्वेश्चन के आई एम एट हायर रिस्क एज पर माय एज और फैमिली हिस्ट्री, मेरे में कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं, और मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए कि हम कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकें। और कोई हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि कुछ टेस्ट कर सकें जिससे हमें कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए। तो पहले तो रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर ये सारे मैंने रिस्क फैक्टर गिनाए, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कॉमन और हमारे इंपॉर्टेंट के हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी अपने जो जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहली बात के इंक्रीजिंग एज, ये इंक्रीजिंग एज, रैपिड अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, ये बहुत कॉमन हो गया। आप समझते होंगे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही लाइफस्टाइल डिजीज है, ऐसा नहीं, कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और जैसे बढ़ती उम्र कहते हमने रैपिड, पहले हम रहते थे गांव में रहते थे, क्लीन एनवायरनमेंट था, पोल्यूशन नहीं थी, एयर बड़ी अच्छी थी। अभी आप दिल्ली में चले जाओ, जब नॉर्दर्न इंडिया में आजकल स्मॉग और पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, व्हाट वी आर सीइंग एट अ वेरी यंगर एज, 25 साल में 26 साल में लोगों को लंग कैंसर, छाती का कैंसर, ये सब हो रहा है। तो ये रैपिड अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, और पंजाब और हरियाणा में तो आपको पता ही है, फसल उगाने में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये कैंसर के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। पंजाब में तो जमीन में भी रेडियो एक्टिव यूरेनियम और ऐसे मटेरियल हैं, मालवा एरिया में, जहां पे कि कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एज, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप 50-40 से ऊपर होते हो तो कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और अभी दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं कि हम इसका कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर सकें। देखिए, मैंने जैसे बताया कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। ये मत समझिए कि सिर्फ हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर इससे होता है, इवन कैंसर ओबेसिटी और वेट से होता है। 30% रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर आप ओबीज हैं। ओबेसिटी का उतना ही रिस्क होता है कैंसर के लिए जितना कि स्मोकिंग के लिए होता है। सो आप अपना ये रिस्क रिड्यूस करने के लिए रोज कम से कम 30 से 60 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। ये कोई भी कर सकता है, ये नहीं मेरे को कह सकते कोई कि मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमको ये करना जरूरी है अगर हम अपनी उसका रिस्क कैंसर का रिड्यूस करना चाहते हैं। फिर हम खाने में कुछ चीजें का परहेज कर सकते हैं।
आपको चाहिए कि आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल ज़्यादा, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसमें कि जैसे कि ये फ्रूट्स आजकल, चलो ये थोड़े महंगे हैं, कॉस्टली होते हैं, बट अगर पॉसिबल है तो दिस सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल शुड बी यूज्ड, एंड फ्रूट्स शुड आल्सो बी यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जब आप खाना खाते हैं आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और शुगर कैंसर को थोड़ा रिस्क करती है। अगर आप मीट खाने वाले हैं तो फिश, पोल्ट्री और बीन्स का एज अल्टरनेटिव टू, मतलब व्हाइट मीट ज्यादा इस्तेमाल करना है, रेड मीट कम करना चाहिए। और बेक, ब्रॉयल और पोच ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि फ्राइंग और चार बॉइलिंग में कैंसर के, पेट के कैंसर के रिस्क थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। और प्रेजर्वेटिव और प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी ये ट्विटर में आया था कि सॉफ्ट ड्रिंक में भी कैंसर के कुछ कारण हो सकते हैं। और अल्कोहल तो आपको पता ही है कि किसी भी बॉडी के, पेट का, लिवर का, हर एक चीज का वो कैंसर कर सकता है। इवन फीमेल जो अल्कोहल लेती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो जाता है। स्मोकिंग की अगर बात करें तो जितना ज्यादा बोले तो उतना कम है, क्योंकि स्मोकिंग हमारे जिस्म में 1/3 कैंसर से करता है। आप सोचते होंगे स्मोकिंग से सिर्फ मुख का कैंसर होता है या गले का कैंसर, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पेट का कैंसर, हर एक कैंसर स्मोकिंग से होता है। तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। एक तो लोग जो स्मोक करते हैं जिसे प्राइमरी स्मोकिंग बोलते हैं, वो तो होती है, उनको तो होती है। इसके बाद सेकंड हैंड स्मोक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड हैंड स्मोक क्या होती है? दिस इज अ स्मोक व्हिच इज इनहेल्ड बाय फैमिली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ स्मोकर, जो स्मोक नहीं करते लेकिन उनके आसपास कमरे में रहते हैं, वहां बैठते हैं। जो स्मोकर स्मोक करता है उसके अंदर से वो पूरे केमिकल्स निकलते हैं। जब आप सांस लेते हैं, बच्चे सांस लेते हैं, तो वो सब अंदर जाते हैं। सो ये बहुत, और वो सब उतने ही रिस्क फैक्टर कैंसर के हैं जो कि प्राइमरी स्मोकर करता है। तो आप ये, इसका तो हम सब कर सकते हैं। पहले तो स्मोकर को बोलना चाहिए कि वो ही शुड नॉट स्मोक। अगर वो मानते नहीं है तो ही शुड गो आउट सेपरेटली एंड ही शुड स्मोक इन अ सेपरेट रूम, नॉट वेयर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर देयर। फिर कुछ कैंसर जो कि अनुवांशिक कारण या फैमिलियल जो होते हैं, उन कारण भी होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, 5 से 10% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में काफी कॉमन है, और ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेका टेस्टिंग और ओवेरियन कैंसर में करते हैं। अगर वो टेस्ट करके, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स में हो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो ये ब्रेका टेस्ट से पता लग जाता है। उसका हम जल्दी से हम देखभाल कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट जल्दी कर सकते हैं, और एडवांस कैंसर होने से बचा जा सकता है। तो ये जेनेटिक कैंसर, अनुवांशिक कैंसर है, ब्रेस्ट, ओवेरियन, कोलन, प्रोस्टेट कैंसर। जनरली ये यंग एज में आते हैं, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स में इन्वॉल्व होते हैं, बड़ा अग्रेसिव कैंसर होते हैं। बट इसके लिए हमारे पास बड़े अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं कि जो हम जल्दी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप, अभी वार्निंग साइंस क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कैंसर है? देखिए, कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो होता नहीं, साइन होता नहीं है कैंसर का। अगर आपको कहीं थिकनेस या लंप है, कोई गांठ है ब्रेस्ट में है, या कहीं भी गले में, कहीं बाजू के नीचे है, अगर आपको खाने में तकलीफ हो रही है, उनको निगलने में तकलीफ हो रही है, बहुत आपका वेट लॉस हो रहा है और बिल्कुल भूख नहीं है, या कहीं कोई नॉन हीलिंग सोर या अल्सर है, जो बड़ी देर से आपका अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका गला भारी हो गया है, जो स्मोकर खासकर, उनकी आवाज ना निकले ठीक तरह से, खाने में प्रॉब्लम हो, या आपका कोई वाट या मोल बड़ी देर से जो इंक्रीज साइज कर रहा हो, तो दीज आर द साइन। जो कहीं से ब्लीडिंग हो, या कई दफा जो पेट का कैंसर होता है उसमें अल्टरनेट लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन रहे, तो वो ये कुछ कारण, ये कुछ साइंस हो सकते हैं which can tell us कि probably you should be more alert, now show to your doctor, go to your nearest doctor or come to us so that we can investigate. So these are the signs which are there, which can show that possibility of a cancer is there. Now हम कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं? Now डायग्नोज के लिए सुई की जांच करनी पड़ती है। इसको 2 सुई की जांच होती है, छोटी सुई की जांच और बड़ी सुई की जांच। तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, लोग बोलते हैं कि हम बड़ी सुई की जांच नहीं कराएं, बट लेकिन
अगर हमें देखा जाए तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सुई की जांच सिर्फ ये बता सकती है कि कैंसर है कि नहीं है, बट कैंसर किस टाइप का है, उसमें क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, वो छोटी सुई की जांच नहीं कर सकते। उसके लिए बायोप्सी या बड़ी सुई की जांच करनी पड़ती है। वो इसलिए कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ब्रेस्ट कैंसर जो भी ब्रेस्ट के ऊपर कैंसर होगा उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, लेकिन वो एक टाइप का नहीं होता, वो कोई 10 टाइप का कैंसर होता है और हर एक कैंसर की अलग अलग ट्रीटमेंट है। अभी ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सब टाइपिंग करते हैं, तो वो करने के लिए वो मोटा टिश्यू चाहिए, उसके लिए बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। ये मैंने लंग कैंसर का बताया, इसके तो 20 टाइप के होते हैं। सो एक छोटा सुई की जांच से वो पता नहीं लगता, और लोग ये सोचते हैं कि बड़ी सुई की जांच करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा गलत है, कोई फैलता नहीं है। वो डायग्नोसिस करने के लिए बहुत जरूरी है और करवाना भी चाहिए। अभी आप सोचते हो कि कैंसर किसको होगा, मेरे को नहीं होगा, वो पता नहीं किसको हो जाएगा, बट मैं ये बताऊं कि कोई भी एज, मैंने कैंसर 6.5 मंथ के बच्चे से लेकर 90 साल तक देखा है कि इस एज में किसी को भी कैंसर हो सकता है। और हालांकि ये ज्यादा 50 साल के ऊपर होता है, लेकिन कोई भी कैंसर ये नहीं कह सकता कि मेरे को कैंसर नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि कैंसर ये लाइफ के लिए थ्रेटनिंग नहीं होता, बट इट कैन कॉज लॉट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रॉमा। सो फाइनेंशियल ट्रॉमा बड़ा इसमें हो सकता है। देन वी हैव टू रन इन ट्रेन में बैठ के हमको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग ये ट्रेन, पंजाब में ट्रेन चलती है जो उसमें बैठ के जाते हैं सस्ता इलाज करने के लिए। सो इसके लिए जरूरी है कि आप इंश्योरेंस लें। एक मेडिकल इंश्योरेंस से मेरी एडवाइस होगी। मैंने अभी ट्रीट किया एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को। वो देखो सबको एडवाइस फाइनेंसेस देता था, लेकिन वो खुद उसने कोई इंश्योरेंस नहीं किया, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई जब वो दवाई खरीदने में, सब करने में। तो मेरी एडवाइस आप सबके लिए ये है कि आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी हम कैंसर का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको जल्दी डिटेक्ट करें, और जल्दी डिटेक्ट करने का क्या फायदा है कि ना तो वी कैन हैव एक तो कंप्लीट क्योर होगा, और दूसरी बात है कि साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। तो फीमेल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है हमारे इंडिया में, और वर्ल्ड में भी अब नंबर 1 होता जा रहा है, तो ऑल लेडीज शुड डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस अ मंथ। उनको शीशे के सामने मंथ पीरियड्स खत्म होने के बाद 3-4 दिन में एक डेट फिक्स करनी चाहिए, और पूरे ब्रेस्ट का एग्जामिन, कोई अगर लंप्स हैं, गले में लंप है, आर्मपिट्स के नीचे लंप है, तो उसको देख के अगर हो तो बताना चाहिए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत लेट आते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर का। सर्वाइवल रेट यूएसए में 90% है कैंसर होने के बाद, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60%, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपके अम्बाला की लेडी को ट्रीट किया था। ये जब आई थी हमारे पास ऐसे थे, इवन उसमें थोड़े से वॉर्म्स वगैरह थे, तो हमने उनको ट्रीट किया है और वो बिल्कुल क्योर हो गई है। अभी नॉर्मल आपके एक सोसाइटी की नॉर्मल मेंबर है। बट देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम ट्रीट कर पाए, क्योंकि इतनी लेट आएंगे तो आपको अवेयरनेस फैलानी है। आज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे आपको ये अवेयरनेस पहुंचानी है कि अगर छोटा सा लंप भी है तो प्लीज कम टू योर डॉक्टर, शो टू योर डॉक्टर, कम टू अस, सो दैट हम उसको अर्ली ट्रीट करें। और दूसरी चीजें और प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लेट डिटेक्शन और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है। हर एक डॉक्टर आजकल अपना बोर्ड लगा के बैठ जाता है कि मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ। वो ऐसा नहीं होता। बड़ा प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होती है, जो एक अच्छी सेंटर में ही हो सकती है। अब मैं कुछ बात करूंगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? ये स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं, ये तब किए जाते हैं जब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता भी नहीं कि आपको कैंसर है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट से हम करके कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉमन कैंसर है इंडिया के, उनके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। एंड देयर आर वेरी रोबस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, कोलन, लंग एंड प्रोस्टेट। ये बड़े कॉमन कैंसर है।
अगर हम कॉमन जो कि 50% तक कैंसर कवर हो जाते हैं, और इनके लिए बड़े सिंपल चीप टेस्ट हैं, अगर हम करवाएं तो हम आसानी से इनको जल्दी पकड़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं स्क्रीनिंग टेस्ट को मैमोग्राम बोलते हैं। ये 40 साल के बाद कराना चाहिए, 40 से 45 तक ऑल्टरनेट ईयर, और 45 से 55 तक एवरी ईयर करना चाहिए, और 55 के बाद एवरी ऑल्टरनेट ईयर। ये सिंपल एक्सरे है ब्रेस्ट का, और इसमें कोई अगर लंप वगैरह हो वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में 90% ऑफ द कैंसर डिटेक्टेड बाय दिस मैमोग्राफी, और हमारी कंट्री में सिर्फ 2 या 5% इससे डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि मैमोग्राफी विल डिटेक्ट कैंसर एट वेरी वेरी अर्ली स्टेज 1 में, और उसका 100% क्योर होता है, और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज आल्सो वेरी लेस। सिमिलरली सर्विक्स कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में होता है, सिंपल पैप स्मीयर 21 साल के बाद हर एक थर्ड ईयर में अगर कराया जाए टिल 65 ईयर, तो ये कैंसर पहली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, जिसमें बिल्कुल सिंपल छोटी सी सर्जरी करके ही इलाज पूरा हो सकता है, कोई और ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इससे हम कई लाइफ बचा सकते हैं। देखिए सर्विक्स कैंसर की और बड़ी प्रॉब्लम है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जब कैंसर हो जाए ब्लीडिंग, पेन इतनी जबरदस्त होती है, बहुत सफरिंग होती है। इट इज टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर, इसको टोटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें चाहिए कि ये वैक्सीन बनी है सर्विक्स कैंसर के लिए, ये हर एक बच्ची को देना चाहिए। 9 साल से लेकर 27 साल तक जो हमारी बच्चियां हैं, उन सबको ये इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन डिपेंडिंग ऑन किस एज में आप दे रहे हो, सिंपल लगाने से, कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, 2 से 3 हजार का इंजेक्शन होता है। ये 100% इस कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो ये सर्विक्स कैंसर बिल्कुल हम 100% रोक सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत हैवी स्मोकर हैं, जिन्होंने 15 साल 20 साल 2-2 बीड़ी बंडल पिया हुआ है, उनको चाहिए कि एक साल में 50 साल के बाद एक दफा वो सीटी स्कैन करा लें, तो उससे बड़ी जल्दी पकड़ में आ सकता है। फिर है गदूद का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है PSA का, वो 50 साल के बाद अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं हो और भी कैंसर नहीं है किसी को, तो 50 साल के बाद हर साल एक दफा टेस्ट करना चाहिए। 200-400 रुपए का ये टेस्ट है। अगर कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है तो 40 इयर्स में भी तो उसको शुरू कर देना चाहिए, हर साल ये टेस्ट करना चाहिए। और प्रोस्टेट कैंसर अभी बहुत कॉमन कैंसर हो चुका है, और इसका बड़ा आसानी से हम पता करा सकते हैं। फिर बड़ी आंत का कैंसर 50 साल के बाद एक स्टूल टेस्ट, सिंपल ब्लड ये स्टूल टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि ब्लड है कि नहीं, अगर वो हो तो हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, जिससे हम बड़ी आंत का कैंसर, जो तीसरा कॉमन कैंसर है हमारी कंट्री में, उसका जल्दी से पता लगा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। तो कुछ ये तो थे स्क्रीनिंग टेस्ट के, हम कैसे कॉमन कैंसर को रोक सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते, बट वो कैंसर का बता सकते हैं। वो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कुछ ब्लड टेस्ट कैंसर के होते हैं। कुछ मिथ्स हैं कि लाइफस्टाइल और डेथ्स, ये डाइट से हमको कुछ नहीं होता, नहीं में ऐसा नहीं है। मैंने बताया है कि आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ओबेसिटी को रिड्यूस करना चाहिए, और एक 60 मिनट का एक्सरसाइज डेली करोगे तो 30% रिस्क रिड्यूस हो सकता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि आप कुछ लोग सोचते हैं कि बायोप्सी से जहाँ बड़ी सुई की जांच करने से कैंसर फैल जाता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ मिथ हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को कैंसर हो गया तो डेथ इट इज इक्वल टू डेथ सेंटेंस। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देखो इंडिया में लेट आते हैं लोग, बट स्टिल वी कैन ट्रीट क्योर 50% ऑफ कैंसर, और अगर अर्ली स्टेज में आए तो 90 to 100% क्योर होता है कैंसर का। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि पेन हो तो तभी कैंसर है, ऐसा नहीं है। कैंसर में पेन बड़ी लेट आती है, कैंसर पेन नहीं करता है, पेन उसी वक्त करता है जब कोई ऑर्गन ऑब्स्ट्रक्ट हो, उसको किसी ऑर्गन को वो दबाए तब पेन होती है, पहले नहीं होती। कुछ लोग लेडीज बड़ी कॉमन चीज देखी है कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी अपना, क्योंकि टेस्ट में कुछ निकल आएगा। ये टेस्ट में नहीं निकलता, अगर आपकी बॉडी में है तो वो तभी निकलेगा। तो ये जो मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट आपको बताए हैं, ये करवाने चाहिए। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, CT स्कैन कराओ,
तो करवाना चाहिए, वो तभी निकलेगा अगर आपके बॉडी के अंदर है। वो ऐसे नहीं सीटी स्कैन में जाने से या अल्ट्रासाउंड में जाने से नहीं बन जाएगा। फिर एक मिथ है कि कैंसर एक दूसरे से फैलता है। जी नहीं, ये भी गलत चीज है। कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के टच करने से या हाथ लगाने से नहीं फैलता है। कई दफा सुनता हूँ कि जो लेडीज हैं वो मेरे को बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर्स को, मेरी डॉटर इन लॉ को समझाइए, वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को हमारे पास आने नहीं देते क्योंकि वो सोचते हैं उनको भी कैंसर लग जाएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे से फैलता नहीं है। और सारे कैंसर अनुवांशिक कारण या हेरिडिटी नहीं होते हैं, सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही हेरिडिटी है। अगर हम देखें, हम 30 से 50% कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं टोटली। सर्विक्स कैंसर तो 100%, तो जो लेडीज सुन रही हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगाएं। से ओरल या मुख का कैंसर, ये तो सिंपल, अगर हम स्मोकिंग को, गुटखा, स्मोकिंग, पान, तंबाकू अगर ये बंद कर दें खाना, तो उससे ये रुक जाएगा। सो फिर खाने के जो कैंसर है उससे खाने, जो मैंने बताया कि किस टाइप के खाने खाने चाहिए, उसमें बड़ी आंत का कैंसर का बचाव हो सकता है। सो 50% कैंसर प्रिवेंटेबल है। ये हमारी वजह से ही कैंसर हमें आते हैं कि हम इन चीजों में उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं अपनी बॉडी को, तभी हमें कैंसर आते हैं। सो इंडिया में प्रॉब्लम है कि एक तो फीमेल्स में ज्यादा कैंसर इसलिए भी है कि देयर इज ए इंडिफरेंस टुवर्ड्स फीमेल वीमेन हेल्थ, एंड देयर इज ए डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस बिकॉज ऑफ maybe financial problem or social reasons are there. कुछ तो क्वैक्स हमको पहले, सबसे पहले लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, वो डिले कर देते हैं। फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी दुकान लगा के बोल देगा कि मैं कैंसर का इलाज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। कैंसर के इलाज के लिए 5-6 डॉक्टर्स चाहिए जो कि हर एक अलग अलग किस्म का इलाज करते हैं, और वो इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे कि इस इलाज के लिए क्या करना जरूरी है। सो कैंसर क्योरेबल है। आपको ये अवेयरनेस देनी है। इट कैन बी प्रिवेंटेड, जैसे मैंने बताया 50% कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और अगर प्रिवेंट नहीं किए जाते हैं कैंसर है तो इट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि जब भी आपको थोड़ी सी भी गांठ हो, कुछ हो, लगे कि जहाँ सिम्टम आए, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए, और ट्रीटमेंट प्रॉपर कैंसर सेंटर में लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा क्योर, 100% क्योर रेट हो सकता है। बेशक ये कैंसर वर्ड एक ऐसा है कि जब कैंसर वर्ड आप किसी को सुनता है तो उसके दिल में ऐसे जैसे उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है, ऐसा लगता है। बट इतना भी हेल्पलेसनेस नहीं है। वी हैव कम अ ग्रेट एडवांसमेंट हैज अकर्ड इन लास्ट 1 decade। हमारे पास एब्सोल्यूट न्यूअर ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, बहुत अच्छी एडवांसमेंट हो गई है। वी हैव टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, इम्यूनोथेरेपीज, where the side effects are absolutely minimum, but effects are very, very good, and people are living very long life because of these treatments. So today's theme is basically that cancer is curable. You know these two people, everyone knows them, there's no need to tell them, they are living a normal life. So after treatment of cancer, you can have a full, happy and normal life thereafter. So this is a magnitude of problem in the world, that every 17 people out of 20 will get every minute 17 people are dying from cancer. This is a magnitude of problem we have in the world. So today on the World Awareness Cancer Awareness Day, we all have to come together and pledge that I can and I will do something to propagate this awareness about cancer and help as much as people as possible for the cure and the treatment of cancer. So with this, I end today's talk. If there are any question, anything regarding presentation, I'll be happy to answer. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें बताया कि किस तरह के जो कैंसर हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेडीज के हैं या जेंट्स में कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो हैं
इन्वॉल्व हैं इसमें कैंसर होने में हमारे साथ सर, और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो हमें टाइमली हेल्प करते हैं, या अगर हम टाइमली उन टेस्ट को करवाते हैं तो हमें इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और जल्दी से वो क्योरेबल हो जाती है। सो इसके साथ साथ सर अब मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैंसर, किसी भी तरह के कैंसर के बारे में, तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, डायरेक्टली वो सर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं अपना कैमरा और अपना माइक ऑन करके। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर आपने बोला कि जो एज है वो एक बड़ा फैक्टर है, कि एज के बढ़ने से हमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा है कि नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि जब हर एक, आपने देखा होगा, आपने कहीं भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी इज मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। वो हर एक सेल क्या होता है कि वो बनता है, फिर वो कुछ देर बाद मर जाता है, फिर बनता है, फिर मर जाता है। सो ये बनने में, क्योंकि बॉडी कंट्रोल करती है उसको कितने टाइम उसमें रहना है, उसके बाद नया सेल आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर नेल के नीचे आपको कुछ आ जाए, वो ऊपर ऊपर बढ़ता 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 फिर निकल जाता है वो। ठीक है जी। तो ऐसी जब ये रेपिटेशन होती है तो कुछ म्यूटेशन जीन्स में आ जाती है, छोटी मोटी म्यूटेशन आ जाती हैं, बॉडी कंट्रोल कर लेती है, बट जैसे एज बढ़ती जाती है वो म्यूटेशन होते जाती हैं। मेरे घर से आए। तो फिर जैसे एडवांस एज होती है म्यूटेशन ज्यादा होती है, रिपेयर कम होता है। तो रिपेयर कम होने से, म्यूटेशन ज्यादा होने से एडवांसिंग एज में ये कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। कैंसर क्या चीज है, नॉर्मल सेल ग्रो करता है, थोड़ी देर में मर जाता है, लेकिन कैंसर सेल ग्रो करता रहता है बट वो मरता नहीं है। वो जो कंट्रोल बॉडी का होता है उसको खत्म करने का, वो सेल का, वो बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो एडवांस एज में ये कैंसर ज्यादा होता है। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ये डॉक्टर नीलम जी ने पूछा है कि डज स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड कैन प्रिवेंट कैंसर? हाँ जी, डज स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड कैन प्रिवेंट कैंसर? जी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें कि दो किस्म के लोग होते हैं जब हमारे पास ट्रीटमेंट करने आते हैं। एक जो बिल्कुल रोते रहते हैं और दूसरे जो कहते हैं ठीक है, आई विल फाइट विद स्माइलिंग फेस, दे कम, and I've seen that people who come with a smiling face, I believe their mind is under control, they do very well, positive energies they do very well with that. सर सर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर जसप्रीत जी ने पूछा है कि इज देयर एनी इंजेक्शन टू लोअर डाउन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इफ मदर हैड ब्रेस्ट कैंसर? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का इंजेक्शन नहीं है, सर्विक्स कैंसर के लिए, क्योंकि जो कैंसर इन्फेक्शन से फैलते हैं उनको रोक सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब, कहने का मतलब है कि ये गाँव में कम दिखता है। जैसे हमारी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती है, तो ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे था कि उनके जो रूरल एरियाज में होता था, इंडिया में बहुत कम था, लेकिन जैसे इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, सो प्रोबेबली उसमें यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन और उसके सिवाय जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर में ये बड़ा कॉमन है कि जो हार्मोन्स है बॉडी में इंक्रीज एक्सपोजर होता है। हम पहले बच्चे अंदर नहीं रहते थे, वो बाहर ही खेलते रहते थे और लोग भी बाहर काम करते थे। आजकल हमारी बच्चों को पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, बहुत देर तक रहते हैं। वो इसलिए कि वो टीवी के आगे बैठे रहते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करने से पीरियड्स लेट थोड़ी आते हैं, तो इसलिए हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस इसलिए हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी। हमारे पैसा ज्यादा आ गया, बैठे बैठे सब कुछ हम करते हैं, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं है। वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, वी हैव टू गो मूव आउट, एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो छोटी उम्र में घर में ना रहे, क्योंकि उनके पीरियड्स बड़ी जल्दी शुरू हो जाएंगे। पीरियड जल्दी शुरू हो गए तो उनका हार्मोन ज्यादा होगा और ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा चांस है। ओके सर, थैंक यू सर। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अनुराधा, लाइक हाउ कैन वी प्रिवेंट द यूट्रस कैंसर? देखिए, यूट्रस कैंसर भी सर्विक्स कैंसर की तरह ही है, थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, स्मोकिंग उसमें ज्यादा है। बाकी हम ज्यादा नहीं प्रिवेंट कर सकते, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की मैंने बताया कि हार्मोन्स इसमें ज्यादा होते हैं
उसमें भी यूट्रस कैंसर ज्यादा होता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड इन्फेक्शन को अगर हम रोकें, जैसे सर्विक्स कैंसर है, उसके लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो इतना कॉमन नहीं है। सर्विक्स और ब्रेस्ट में जो डिफरेंस है ही है, बट ज्यादा हार्मोन्स का रोल उसमें ज्यादा है। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनको ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सरसाइज करें, इट्स आल्सो लाइफस्टाइल डिजीज, उसमें यूट्रस कैंसर कम होगा। Sir, there is one more question. Like, it is whether it is a myth or a fact that if we take medicine during the menstrual cycle, it lead to uterus cancer. Is it right? नो नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है यूट्राइन कैंसर और मेडिसिन लेने में, ऐसा नहीं है। Thank you, sir. Any other question? Any one? Sir, Sir. Seema ji, I can ask one question. Yes, ma'am. Yeah, please, ma'am. Please. Doctor, what's the symptoms of the prostate cancer in males? बहुत अच्छा Sir, question। one question is this, and the second question I want to ask you, is there some test like pap smear or something, how much authenticity or how much level of authenticity we can give for the women to assess the cervix cancer? Pap smear karte hain na sir? Very very good question। Sir, my two questions are very, because in the males prostate sometimes come all of a sudden और देखिए, लोगों को, आदमियों को पता नहीं बहुत चलता। कॉमन है। देखिए, प्रोस्टेट हर एक मेल का एनलार्ज होता है 45 इयर्स के बाद, बट मेजॉरिटी वो होता है बेनाइन, जिसको बीपीएस बोलते हैं, वो कैंसर नहीं होता मेजॉरिटी में। लेकिन 10% कुछ लोगों में ये प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है। सो उसके सिम्टम्स सिंपल होते हैं, जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिंपल के पेशाब का रुक जाना, या जोर पेशाब करते वक्त बहुत जोर लगता है, या पेशाब करने के बाद पेशाब अंदर रह जाता है और फिर ड्रिबल होता रहता है, पजामे में गिर जाता है। तो ये छोटे छोटे सिंपल कोई खास सिम्टम नहीं आते। हाँ, अगर वो ये अर्ली स्टेज में, अगर वो एडवांस स्टेज में चला जाए तो रीढ़ की हड्डी में, पीठ में अगर हड्डियों में चला जाए, तो नॉर्मली ये हड्डियों में जाता है, तो हड्डी का दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। बट मेन सिम्टम यही होते हैं कि पेशाब करने में उनको रुकावट आती है। तो ये तो थे प्रोस्टेट कैंसर के। दूसरी बात उन्होंने की कि पैप स्मेयर कितना ऑथेंटिकेट है। देखिए, पैप स्मेयर ही एक टेस्ट है जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, और अच्छी लेबोरेटरी है, जो पैथोलॉजिस्ट है वो अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। वेरी सिंपल, इट इज चीप टेस्ट और बहुत अच्छा टेस्ट है। ये ना कि कैंसर बताता है, कैंसर के पहले भी स्टेजेस होती हैं, कैंसर होने के बाद तो थोड़ा हो जाता है कि कंप्लीट कैंसर है, उसके पहले CN1, CN2, CN3 होती है स्टेजेस, जिसमें क्या है अबनॉर्मलिटीज बताना शुरू कर देता है। तो ये पैप स्मेयर में बड़ी आसानी से आ जाता है। इसके सिवाय, पैप स्मेयर के सिवाय HPV DNA टेस्ट होता है, वो कुछ सिटीज में अवेलेबल है टेस्ट। वो DNA तो उससे पता लग जाता है कि वो वायरस अभी सर्विक्स में आ चुका है, तो इसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा जाए। तो पैप स्मेयर एक अच्छा टेस्ट है, और सभी को ये 100% तो कुछ नहीं होता, बट ये बड़ी बड़ी अर्ली स्टेज में, जब तक कुछ देखने में कोई मास नहीं होता, कोई गोला नहीं होता, उस स्टेज में ये पकड़ कर लेता है। तो इट इज अ गुड टेस्ट टू गेट इट डन। अगर प्रोस्टेट का, अगर किस मेल्स में अगर टेस्ट कराना चाहते हैं, तो कितनी उम्र में टेस्ट कराना चाहिए? और अगर वो सिम्टम्स हो या ना हो, जैसे पेप स्मीयर एक क्या कहना चाहिए कि सर टू डिटेक्ट द एनीथिंग एल्स, ऐसी क्या प्रोस्टेट के लिए भी होता है सर? एनीथिंग वी शुड गो फॉर द प्रोस्टेट चेकिंग और समथिंग? प्रोस्टेट के लिए तो बड़ा सिंपल टेस्ट है, PSA ब्लड टेस्ट होता है, और हाँ। वो PSA टेस्ट होता है, और नॉर्मली 4 से वो कम उसका लेवल होता है। अगर 8-9, देखो गदूद का नॉर्मल इंक्रीज होने से भी PSA इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अगर 9 से ज्यादा है वो ब्लड टेस्ट की मात्रा, तो बायोप्सी करानी चाहिए, और उसमें पता डायग्नोस हो जाता है। आजकल बड़ा आसान है, OPD प्रोसीजर है छोटा बायोप्सी करने में। अगर अल्ट्रासाउंड करें तो हमें पता लगता है बड़ा इनलार्ज हो गया है, तो उसका बायोप्सी करें तो बड़ी बड़ी अर्ली स्टेज में इसको पता करके पूरा क्योर हो सकता है इसका। तो PSA टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है, जहाँ डॉक्टर एक उंगली डाल के टेस्ट करेंगे तो उनको पता लग जाता है कि कैंसर है कि नहीं, अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। बट ऐसा कुछ टेस्ट नहीं है उनका कि स्मेयर जैसे टेस्ट होता है, बट PSA ब्लड टेस्ट बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं।
So at the age of 45, sir, every male should go for it. ये नॉर्मली 50 साल से ऊपर हर साल कराना चाहिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर में एक किसी और मेंबर को भी प्रोस्टेट कैंसर है तो 45 साल से, अगर आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स को प्रोस्टेट या कोई दूसरा ब्रेस्ट कैंसर भी है या ओवेरियन कैंसर है तो फिर 40 साल से ये शुरू करना चाहिए। हर साल ये ब्लड टेस्ट करना चाहिए। सिंपल 200-300 रुपए का टेस्ट है, ये कोई ज्यादा महंगा टेस्ट नहीं होता। Right, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि हाउ ऑथेंटिक इज CA-125 टेस्ट। देखिए, CA-125 जो होता है वो ओवरी का टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए। ये एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं इतना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको पेट में गोला है, कोई अल्ट्रासाउंड में पता लगा है, तब ही हम ये टेस्ट कराते हैं। तो ये अगर राइज हो 200-300 से ऊपर चला जाए तब हम बोलते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर है, लेकिन ये डायग्नोसिस के लिए नहीं। अगर तो आपको ओवरी का कैंसर हो जाए तो उसका फॉलोअप के लिए अच्छा टेस्ट है, डायग्नोसिस के लिए अच्छा टेस्ट नहीं है। डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं, जहाँ CT स्कैन से कर सकते हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली भी पेट में अगर पानी चला जाए तो ये CA-125 इंक्रीज हो सकता है। ये 100% ये नहीं बताता कि ओवरी का कैंसर है कि नहीं है। हाँ, जिसे ओवरी का कैंसर हो जाए उसके फॉलोअप के लिए बड़ा अच्छा टेस्ट। सर, आप ये बताइए सर कि एक व्यक्ति को अपने जनरल बॉडी चेकअप को, एनीथिंग जिसको वो आप पूरी अपने बॉडी का चेकअप किस एज पे करवाना शुरू करना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए ताकि वन शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर हेल्थ ट्रैक? देखिए, ये क्योंकि टेस्ट अगर तो आपको कोई सिम्टम है, वो किसी भी एज में हो अगर है तो वो आपको उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो जनरली 45 साल के बाद ही हम बोलते हैं कि आप अपने टेस्ट करने चाहिए। फीमेल्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। फीमेल्स के लिए एक तो मैमोग्राम जो होता है एक्सरे ब्रेस्ट का, वो 45 के बाद शुरू करना चाहिए। एवरी ईयरली दे शुड गेट। और दूसरा फीमेल्स के लिए है पैप्समेयर, वो 21 साल के साथ के बाद शुरू करना चाहिए। वो आप हर तीसरे साल वो करवाइए, हर साल नहीं, तीसरे साल करवाइए 21 साल के बाद, और 65 साल तक। 65 साल के बाद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन को भी 10-15 साल लगते हैं जब तक इन्फेक्शन, क्योंकि सर्विक्स कैंसर पूरा इन्फेक्शन से मेल से फीमेल को जाता है बेसिकली। तो इन्फेक्शन होते होते ही 10-15 साल हो जाए तभी कैंसर बनता है। तो इसलिए 65 ईयर तक ही हम वो टेस्ट बोलते हैं करने के लिए, लेकिन 21 साल के बाद शुरू करना चाहिए। बेस्ट है कि 30-35 की एज में ये हर साल तो कराना ही कराना चाहिए, हर तीसरे साल कराना चाहिए। और मेल्स में है प्रोस्टेट कैंसर, उसका सिंपल PSA ब्लड टेस्ट है, और बड़ी आंत का कैंसर, कोलन का कैंसर के लिए स्टूल सिंपल टेस्ट है। और जो बड़े हैवी स्मोकर हैं, बहुत हैवी स्मोकर हैं, जो 2-3 बंडल बीड़ी के 15 साल जिन्होंने पिए हैं, उनको 50 साल के बाद एक CT स्कैन कराना चाहिए। तो ये 50 साल के बाद मेल्स के लिए और 45 साल फीमेल के लिए हमको टेस्ट करने चाहिए। और रूटीनली आपको देखो, रूटीन में CBC ब्लड टेस्ट जो नॉर्मल रूटीन होता है उसमें भी बड़े कई दफा ब्लड कैंसर और ऐसे कैंसर उसमें निकल आते हैं। तो ब्लड कैंसर वगैरह एक अल्ट्रासाउंड पेट का और एक्सरे तकरीबन 1-2 साल में करा लेना चाहिए, उससे बड़ी जल्दी हमको छोटे मोटे कैंसर पता लग सकते हैं। So there is one question, क्या male should also go for HPV? There is a question. Yes, this is a very good question. ये देखिए, मेल्स का भी जो ओरल कैंसर है उसमें HPV इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में इनके लिए टेस्ट नहीं बना है। तो वो जो सर्विक्स कैंसर में हम इंजेक्शन देते हैं ना, वो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में मेल्स को भी देते हैं, क्योंकि वो ओरल कैंसर, जहाँ गले का मुख का कैंसर, वो उससे प्रिवेंट करते हैं। और वो उनको HPV इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी वो फीमेल्स को फिर नहीं करते अगर वो छोटी उम्र में इंजेक्शन लगा लेंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो मेल्स को, यंग मेल्स को जो 10-11 साल के बाद मेल्स को भी लगाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी शुरू नहीं हुआ ये प्रोग्राम, बट यस करवाना चाहिए, ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए उनको भी, क्योंकि ट्रांसमिट वही करेंगे फीमेल्स को
और वो उनको भी मिल जाता है, लग जाता है, ये इन्फेक्शन के वायरल इन्फेक्शन है, ये उनको भी ये प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टेस्ट नहीं है उनके लिए कोई। Yes. और कोई Any other- अपनी किसी की भी कोई पूछना चाहता है तो वो सर से पूछ सकता है, डॉक्टर साहब से। मैम दीपिका मैम, हाँ जी मैम। Good afternoon, sir. Good afternoon. नहीं Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, सपोज कैंसर डिटेक्शन के बाद कोई ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी सेटिस्फेक्शन कैसे होगी और कैसे पता चलेगा? मैडम प्लीज रिपीट कीजिए, नेट थोड़ा सा डाउन होगा, मेरे को समझ नहीं आई क्वेश्चन का। सर वो कह रही हैं कि कैंसर अगर किसी पेशेंट को हो गया और हाँ। ट्रीटमेंट शुरू हो गई, तो वो ट्रीटमेंट उसको उसके लिए सूटेबल है या वो उससे क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा सर? देखिए, एक तो पहली बात है कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड दुनिया के, जो ऐसा है कि कैंसर के सेट प्रोटोकॉल्स हैं पूरे दुनिया में बने, वही प्रोटोकॉल जो अमेरिका में चलता है वो यही चलना, हिंदुस्तान में वही चलता है। तो पहली बात तो आप उस डॉक्टर के पास जाइए जो कि सेट प्रोटोकॉल्स देता है। दूसरी बात है कि हर एक बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, और उसका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हर दूसरे या तीसरे महीने में स्कैन करते हैं। तो बेस्ट स्कैन तो पेट स्कैन ही होता है। पेट स्कैन जो होता है उसमें पता लग जाता है कि आपका कैसा रिस्पांस हो रहा है, ट्रीटमेंट की वजह से रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये टेस्ट होते हैं, पेट स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन होगा, उससे पता लग सकता है कि आपका रिस्पांस कैसा चल रहा है, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है। सो ये सीरियल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हर, देखिए जल्दी कराने का कोई फायदा नहीं, कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है कि 2 दिन में गायब हो जाएगा। जनरली टेस्ट 2 या 3 महीने के बाद ही किए जाते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने के, तब पता लग सकता है कि आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी मैम, रीनू मैम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर। गुड आफ्टरनून सर। सर महिलाओं को मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है सर, उससे भी कैंसर का कुछ रहता है सर? कैन यू रिपीट? सर हाँ जी सर। मेनोपॉज जल्दी आना तो वैसे तो बॉडी को हार्मोन्स चाहिए होते हैं, एस्ट्रोजन हड्डियां वगैरह के लिए, वो तो पीरियड से ही आते हैं। मेनोपॉज आने से वो कम हो जाते हैं, लेकिन आपका ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर ये कम होते हैं अगर आपका मेनोपॉज जल्दी आ जाए। कम होते हैं क्योंकि आपका हार्मोन्स जो रहता है रिलीज वो कम होंगे, तो इससे ब्रेस्ट कैंसर जिन लेडीज को ये मेनोपॉज बहुत लेट आता है उनमें ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट का और यूट्रस का हो सकता है। जिन लेडीज को जल्दी हो जाता है उनको कम होता है, उससे कैंसर कम ज्यादा नहीं होता। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सर पूछ सकते हैं जी। I think नहीं है तो I thank you all very much कि आज Just- वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के Sir, we- Thank you, sir. Now I request Dr. Surjit Angra, President Rotary Club Ambala Central, who is really an inspiration for us, to give his vote of Dr. Surjit Angra. Thank you, Dr. Sema. Can you hear me? Yes, Yes. sir. Yes. A very good afternoon, one and all present here on the platform. First of all, on behalf of the organizers and on participants, and also my own behalf, I convey my sincere thanks to Brigadier Dr. Rajeshwar Singh ji, Director, Medical Oncology, Paras Hospital, for such a wonderful talk, such an informative lecture on World Cancer Day. डॉक्टर साहब ने कैंसर के बारे में सबको अवेयरनेस दी, इसके स्पेशली फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स में क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफस्टाइल, एक्टिव पैसिव स्मोकर्स के बारे में बताया,
और मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है कैंसर के बारे में डिटेल में बताई डॉक्टर साहब ने, और कैंसर के लिए जो भी टाइमली अगर करवाया जाए टेस्ट, so we can treat and we can decrease death rate also in the cancer. Even in recent years also, the United Nations, WHO, and other UN agencies have recognized the urgent need for a global commitment. जो awareness डॉक्टर साहब ने हमें दी है, that is very important, so that, and we need our commitment to create a cancer-free world. I'm also grateful to MDSP Girls, especially its principal, Dr. Kiran Angra, and NSS Program Officer, Dr. Seema, for making this webinar possible for all the participants and inviting a very renowned doctor to give views, awareness to all of us on Cancer Day. And thanks to Mrs. Sukhinder Kaur Virk, President Innerville, Ambala City, all my Rotarian friends, Innerville sisters, staff members of MD Girls College, and all others who are present on this Zoom platform. They have made this program successful, they have made this webinar successful and meaningful. And I do hope कि आप सबके through awareness और movement जाएगी, और स्पेशली जो NGOs हैं, बेट, रोटरी क्लब और इनर व्हील, हमारे तो जो एरियाज फोकस भी यही है, डिसीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हेल्थ, वाटर सैनिटेशन. तो ये सब जो आपने नॉलेज दी डॉक्टर साहब हमें, should go a long way to help the society through these NGOs also, so that we can for a cancer free. Thank you so much. Thanks to one and all. Thank you. Thank you, Dr. Surjit Angra ji. Now, once again, I am very thankful to the doctor and the team of the Paras Hospital, President of Rotary Club Ambala Central and his entire team, President of Innerville Club and the entire team of Innerville Club, and at the most, I am very thankful to our principal ma'am for organizing such a wonderful all of us. Thank you once again. On the same hand, sir, Brigadier Dr. Rajeshwar ji, our volunteers are here. They will spread this message. Important is Yes, that ma'am. it should not finish here only. It should be transmitted to the people around. So I assure you on behalf of NSS volunteers, it will happen and it will become meaningful. Thank you. So our program officer has expressed their thanks, and no doubt, not the least, we are very thankful to Pankuri, because she is the lady who is the link between you and us. So I really bless her, the young woman, and thanks her for making us connect to you. Thank you madam. so much to every. Yes, sir. Thank you, madam. Thank you for your patience. Thank you, sir. Thank you. Thank you to the Thank you, whole ma'am. Mrs. Sukhinder Kaur Virk and Dr. Surjit Angra to join us and to make the thing happen. Thank you so much to everyone present here. Thank you, ma'am. Thank you, ji. Thank you. Now ma'am. we leave the meeting. Now We you are can free. leave them. Yes. Okay. चलो जी कर दिया end? रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अब पे